very good morning, everyone. We have with us Monikuntala Bhattacharya. This is going to be a very exciting session because I know her work has a lot of intrinsic qualities in it, but I've not read a lot of it because of the translation aspect. And it's going to be an interview where we will go and discover her work because I think she's an exciting new voice, an exciting new writer with a mind of her own and a prodigious amount of work which has been produced in just a decade or so. So it's something that we have to look at, something we have to discover, and if possibly sooner than sooner translate. Only because of my sudden discovery of my literature. And I worked very hard. First, मैं सबको पहले नमस्कार करना चाहती हूँ। हुआ मेरा पहला ये हुआ में पहला बार है। I cannot speak English so spontaneously. I cannot say Hindi also. I cannot say Assamese also so fluently, so spontaneously. I can only write. I can only feel and I can only write. What is your question? Yeah, no, what is the word for fresh fragrance? Fresh fragrance का In मतलब Assamese. That's how your work was described. So I'm sure it has a lot of weight to what the writer of the Tribune was saying when you described your work as fresh fragrance. The critic has no. Yes. Anyway, her work has an enviable appeal to the masses as well as the young people in Assam. It has also won critical acclaim, which is an enviable quality. I mean, very few of us can seek to have this, an appeal with the masses, a popularity with the masses, and a kind of critical evaluation and appreciations of the deeper aspects of one's work. Some of her works have specially been lauded. There is your novel which you wrote, autobiography, which you wrote in 2010, Chitrapat, which means the canvas, and that has been compared to Vikram Seth's Golden Gate. It's been penned entirely in verse, which is, I think, quite a feat, and few of us can hope to achieve that. Then another of your works, Moi Desdemona Hobo Kojo, which is about a group of traveling mobile theatre characters, again has won a lot of critical acclaim. So have Arundhati and Kobikonga. Now let's find out more from the girl herself, or woman of substance as I would like to call her, but you know, the girl thing is more patriarchal, I guess, so we'll use both, why not? मोनिकुंतला हम लोग शुरू से करते हैं, जैसे आप एलिस इन वंडरलैंड हैटर को कहती है, चलो शुरुआत शुरू से हो जाए, ओके? हमको आपकी बचपन का यादगिरी जरा बताओ, जिससे आप एक लेखक बनी और जो आपकी मन की खोज है वो कर पाए. What were the influences in your childhood that forced you or that led you to the path of writing to begin with? आप हिंदी में कह सकती हो या अंग्रेजी में, ये आपका चॉइस. मेरा बचपन बहुत अच्छा था. I cannot play that time. I could not play because my head was not so good. So my father bring me from the playground to home and उसने मुझे हाथ पे किताब थमाया कि तुम पढ़ो. तो एक के बाद एक किताब पढ़ा और कहानी सुनता गया उसके मुंह से, माइथोलॉजिकल कहानी बेसिकली. तो एक दिन मेरे नज़र पे पड़ा एक अलमीरा which was full of books, but that was locked.
मन में ऐसा चिंता है कि ये लॉक करके रखा, हमेशा लॉक होता है, इसमें बड़ा बड़ा वॉल्यूम का बुक्स रहता है। मेरा बुक मुझे नहीं देता ये बुक पढ़ने के लिए, शायद कुछ खास बात होगा इसमें, पापा नहीं देते थे हमको पढ़ने के लिए। तो मैंने मौका ढूंढता रहा, एक दिन मौका मिल गया तो बुक्स निकाल के देखा, लेकिन पढ़ो तो कहाँ पढ़ो, जगह नहीं मिला करने। तो दीवार के एक कोने पे जाके खड़ा होके बुक्स का पेज जब देखा तो देखा कि वो वेद था, वेद, पुराण, उपनिषद, ये सब होली बुक्स था। तो इतना रहस्य था उसमें, मैं समझ नहीं पाया, इतना बड़ा बड़ा वॉल्यूम में पढ़ नहीं पाती थी। तब पापा ने उसने देख लिया कि मैं ऐसा छोड़ी पढ़ना शुरू किया, तो उसने बोला कि तुमके मैं छोटा छोटा बुक्स लाके देता हूँ, तुम पढ़ो। जब पढ़ा मैंने, ऐसा लगा कि आसमान की तरफ जब चांदी रात को देखती हूँ, नदी बहते हुए नदी को जब देखती हूँ, मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि ये सब कुछ बोलना चाहता है, लेकिन उनका भाषा नहीं है, जीव नहीं है, उसका लैंग्वेज नहीं है। तो उनके लिए मैं लिखती हूँ। जितना भी नेचर, पेड़ पौधा है, नदी है, जानवर है, जो बोल नहीं पाता, उसके लिए मैं लिखती हूँ। तभी मैंने सोचा था कि मैं एक दिन लेखक बनूंगी। पापा को बोला था मैं एक दिन बहुत बड़ा लेखक बनूंगी, यहाँ जितना सारा तुम्हारा अलमीरा में बुक्स है, सभी का कहानी चुरा के मैं इतना बड़ा बुक्स लिखूंगी। तभी मैं बोली थी। लेकिन उसने मुझे बोला कि हाँ, उसने हंसा नहीं, उसने मतलब सीरियसली लिया मेरा बात और बोला कि हाँ तुम कर सकोगे, लेकिन उसके लिए तुमको पढ़ना जरूरी है, देश विदेश के कहानियाँ तुमको पढ़ना जरूरी है, जानना है कि साहित्य क्या है। तो डेली मैं बुक्स पढ़ती थी, ये पहला बात, डेली पढ़ती थी और अच्छा लगता था, उसमें इन्वॉल्व होना अच्छा लगता था। फिर मैंने क्लास 2 में पोएम लिखा था, फिर क्लास 9 से 11 तक पूरा एवरीडे लिखती थी। तब पापा ने बहुत एनकरेज किया था, मेरे नेबर्स, मेरा टीचर्स, सभी ने एनकरेज किया था और बचपन मेरा बहुत सुंदर था। ये सुंदर सा बचपन, चाबियां खोलकर, जानवरों को देखकर, पशु को देखकर आपने सोचा इनके लिए लिखूंगी, ये किताब खोलेगी, which is such a powerful metaphor. Tell us more about the geographical location of this ideal childhood place. I born in Assam and brought up here. My father was a gazetted officer. He was transferred frequently in Assam. That time, when I went to school, that time. You said you began writing Monikuntala at the age of 30, and then there was simply a deluge of words and words and words. Yet you talk of something that is a catalyst in your life and pushes you to write that deluge, open out, unleash that deluge. You told me yesterday that you are a very happy person. You have a happy family life, you have a happy career, yet there is a darkness within you, there is a void which pushes you to write. Tell us more about this void that creates this deluge. मैं नहीं चाहती पृथ्वी के हर राइटर के अंदर वो होता है कि नहीं, मेरी लाइफ में, मेरी पर्सनल लाइफ में मेरा सब कुछ है, मेरा अच्छा ससुराल है, मेरा हस्बैंड अच्छा है, मेरा बच्चे अच्छा है, मेरे मम्मी के घर के सभी अच्छे हैं, सभी लोग मुझे एनकरेज करते हैं, मेरा खुद का लाइफ भी अच्छा है, रीडर मुझे ले रहा है, अगले साल के लिए मुझे इस साल में बुकिंग करता है, तो इसके वेरी हैप्पी होना भी चाहिए। लेकिन क्या होता है पता नहीं, अभी तक मैं उसका नाम नहीं दे पाया, उस फीलिंग्स का। कि छाती के अंदर ऐसा लगता है कि जो अंदर एक होल जैसा है, शायद स्टीफन हॉकिंग उसका नाम दे पाएगा जैसा होल जैसा है, उसमें तो एयर
जरूर होगा, लेकिन उस एयर का नाम क्या है मैं नहीं जानती। उसको भरने के लिए मैं शादी के बाद जब एक नया दुनिया में कदम रखा, बहुत कुछ मिला था मुझे, तब मैंने कोशिश किया कि घर सजाना, कुकिंग करना, इनके साथ इधर उधर जाना, घूमना, मूवी देखना, जो एक हाउसवाइफ को एग्जैक्टली होता है नॉर्मल लाइफ में, तो सब किया। लगता है कि 2-3 दिन के लिए लगता है कि सब कुछ भर गया है, जो मैं चाहता था मिल गया, बस खुश हूँ मैं। धीरे धीरे ऐसा लगा है कि ये वो नहीं है जो मैं ढूंढ रहा हूँ, वो नहीं है। लेकिन क्या है पता नहीं है। लेकिन अभी ऐसा हुआ है, जब मैं लिखना शुरू किया तब ऐसा महसूस हुआ है कि मैं उस जगह तक, उसका नाम, एड्रेस ढूंढने के लिए कि रास्ता खोज पाता लिखने के जरिए। एक दिन ना एक दिन वो जो वैक्यूम है वो भर जाएगा। मुझे कुछ कहना है, मुझे कुछ एक्सप्रेस करना है, मुझे कुछ बोलना है, जो औरतें बोल नहीं पाते। घूंघट के आड़ में रोटियां पका के अपने सारा जीवन बिता देते हैं। और जो पेड़ पौधे बोल नहीं पाता, जो श्रमिक माइन में काम करता है बोल नहीं पाता, जो विप्लवी सशस्त्र विप्लव कर रहा है लेकिन उसका भाषा कोई समझ नहीं पाया, जो टेररिस्ट काम उठा के अपना जीवन जौवन पीछे छोड़ देता है, अपनी फैमिली छोड़ देता है, उन लोग क्या बोलना चाहते हैं बोल नहीं पाते, लोग सुनना नहीं चाहते। तो उन सभी के लिए मैं लिखती हूँ। मैं सोचती हूँ कि वो जो लिखने का जो तरीका, जो रास्ता मैंने ढूंढा है, वो रास्ते से मेरा ये जो गोल है एक दिन भर जाएगा। मुझे ऐसा लगता है एक दिन मैं सचमुच फुल फ्लेजेड हैप्पी वुमेन बन जाऊंगी, शांति आ जाएगा। A lot of writers describe this inner feeling very beautifully. There's this Turkish Nobel laureate who calls it the huzun, a kind of melancholia, which it forces a writer to kind of give his best in his writing. So it's probably a huzun you're talking about, which you articulate in your own words as a dark void, which has no road. I think that's a beautiful metaphor.